Hello everyone, welcome back to 30-day Constitution series of UXIS, your daily dose of the Indian Constitution simplified for the UPSC and other competitive exams. In today's episode, we are diving into a crucial part of our constitutional framework, that is constitutional bodies. These are not just the administrative institutions, but they are the pillar that hold the value of democracy, transparency, and accountability in our governance. Now, have you ever wondered how institutions like UPSC and election commissions or the finance commissions maintain their independence and authority? Why they mentioned directly in the constitution? How do they shape the functioning of the Indian state? In this video, we will explore their structure, the powers, and the responsibilities, and most importantly, their significance in maintaining the constitutional spirit of India. So grab your notebook, pen. By the end of this video, you will have a crystal clear understanding of the constitutional body. So let's start of today's topic, that is constitutional bodies. So as you can understand by the name of itself that the constitutional bodies are the institutions that have derived their authority directly from the Constitution of India and not from any other source, but itself it is mentioned in the Constitution of India. So their formation, their power, their functions, and their independence are explicitly mentioned in the Constitution itself. Now, if I talk about the features, then first, the source of authority is Constitution of India, and the status is like autonomous. It may be autonomous, independent as per the constitutional provisions whatsoever it is given and made by the constitutional makers. Sometime it is amended. It was added by the Constitutional Amendment Act under Article 368. So the appointment process, if I talk about the appointment process, of course, it is done by the President of India usually as per the specific articles as are given for the particular bodies or the institutions which I have to talk in this series, in this video. Now, removal process, if I talk about, so of course, again, through the special procedures to ensure the independence of that particular office so that that office cannot become the hands of the government in their arbitrary actions or something like that. And of course, the budgetary allocations is charged on the Consolidated Fund of India, and it is more accountable to the Parliament, as the Parliament is the legislature, and Parliament is representing the people of India. Of course, they by their directly elected representatives. So these are the basically over frame of the constitutional bodies. Now, constitutional bodies, if I talk about, so of course, first it comes like Election Commission of India, and this body is absolutely in the news this time just because of the elections which is going to held in Bihar this year. And particularly article, if I talk about, so it is mentioned under Article 324 to 329, which basically conducts the free and fair elections to the parliament, state legislature, assemblies, and the election of the president and the vice president. Now, you have to understand that there is a state election commission also, about which I have already talked in my previous videos, where I talked about the local self government, particularly for the Panchayati Raj institutions and the urban local bodies. Now, so state election commissions basically held the elections of those local self-governments, and whereas the Election Commission of India is particularly aimed to conduct the free and fair elections of parliament, state legislatures, and the president and the vice president. Now, the second constitutional body, see, this is not the actual hierarchy, but this is just for explanation. Like Union Public Service Commission, like for which most of you as students are appearing in the next years and preparing for that exam. So the article number 315 to 323 is talking about the UPSC, which basically has the function or conducts the recruitments of the exams for all over the India and the central services. And the same kind of things like the state held, like state public service commissions, which the article 315 to 323 itself again is mentioned in the constitutions, which basically conducts the recruitment of these state services. Now, the one of the most important of commission, that is the constitutional body again, that is a finance commission.
Under Article 280, it is constituted in every 5 years, which basically works to recommend the distribution of the financial resources between the center and the state. And the same kind of institution, that is the same kind of the office, is constituted in every 5 years for the state also. That is called the State Finance Commission for the distribution of the financial resources between the state and the local self. Now, the next one is Comptroller and Auditor General of India, about which the article number 148 to 151 there is mentioned about the CAG. And I have already talked about these institutions. For example, ECI, that is the Election Commission of India, CAG, Attorney General of India, Advocate General of India, which is Article 7165 mentioned. Of course, I have already talked about in the previous lectures. If you have not watched those videos, then go and watch that videos right now. Now, Special Official for the Linguistic Minority, Article number 350, capital B, is basically talks about to ensure the protection of the linguistic minority. Now, the next one is the National Commission for the Scheduled Caste, about which the article number 338 is talking about, which basically works for the safeguards of the interest of the scheduled caste, as the name mentioned, is particularly for the National Commission for the Scheduled Caste, and the same kind of things is for the ST, that is the Scheduled Tribes, article number 338, capital A. Now, cooperative society is basically 243ZH to 243ZT, which is amended, which is added through the amendment of the 97th Constitutional Amendment Act, which basically provides the regulation and the promotion of the cooperative societies. As you know, this is in today's time, the Honorable Amit Saji is the cooperative minister of the central, and he works for the cooperative societies and basically cooperative in India. So about this institution, this office, I will also talk in the next lecture. Now we have to look in details about these institutions, which is getting their powers from the constitution itself. So first, before going into the deep, we have to understand this, that what we have to remember about these constitutional institutions. Of course, the ECI, the Election Commission of India, or the CAG, or the UPSC, they enjoys the constitutional protections as the terms and tenures and the removal process, etc., budgetary allocations, everything is mentioned in the constitution itself. Now, I have already told you that every 5 years, the Finance Commission is constituted by the President of India, and the President appoints the UPSC chairman also and the members. These are the see. Basically, I am going to tell you all these things in details. So let's go directly there. So first of all, we will start from the UPSC itself. That is the Union Public Service Commission. About uh, the most of the students who are preparing, absolutely they know, but whom do not understand about this institution or this office, basically they have to look into this, like article number 315 to article number 323 of the part 14 of the Indian Constitution, talking about the Union Public Service Commission, which basically services under the union and the state, रिक्रूट करता है, ठीक है. नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करूं तो ऑफ कोर्स ये 315 से है, तो एब्सोल्युटली इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल बॉडी है. And jurisdiction is like for the union and all India services recruit करता है ना. All India services is three kind, like Indian Administrative Service, IS, IPS, that is the Indian Police Service, and the IFOS, that is the Indian Forest Service, is the IAS, IPS, and IFS. They basically the all India services are there. ठीक है. Now the headquarter की बात करें तो of course नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में headquarter इसका. Composition की बात करें तो chairman and other members number is decided by the president or basically the government of India. Now tenure की बात करें तो 6 years until the age of the 65 years, whichever the earlier. 6 साल और 65 साल की उम्र, 6 साल या तो उनका टेन्योर होगा, या फिर 65 साल की उनकी एज, जो भी पहले आएगा उस हिसाब से उनका रिटायरमेंट होता है. नाउ अपॉइंटेड ऑफ कोर्स बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट इटसेल्फ विद द सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा उसके लिए फॉर द मिसबिहेवियर व्हाटसोएवर इज डन अकॉर्डिंग टू दैट.
ओके। नाउ रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट यूपीएससी सेंड करता है टू द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट फिर इसको ले डाउन करते हैं टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन ऑफ कोर्स 9 टू 11 मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं। और एलिजिबिलिटी है कि आपको एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर्स जो होंगे वो 10 साल तक एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, अपनी गवर्नमेंट सर्विस दे चुके होंगे, आइदर सिविल और मिलिट्री। और जैसा कि आप सभी जानते हैं इस समय जो यूपीएससी के चेयरमैन हैं डॉक्टर अजय कुमार जी हैं, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाउ इसके बारे में कुछ और समझते हैं, लाइक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, लाइक इनको इंडिपेंडेंस कैसे दी जाती है। सो ऑफ कोर्स जो ये यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं एंड मेंबर्स होते हैं, दे कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट ऑन द प्रूवन मिसबिहेवियर और इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड, लाइक उनकी माइंड की ही कुछ उनकी फिजिकल कंडीशन या माइंड की मेंटल कंडीशन सही ना हो, एंड वो भी आफ्टर सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद। सैलरीज की बात करें तो सैलरी ऑफ कोर्स चार्ज अपॉन होती है टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं जो भी चीजें चार्ज अपॉन होती हैं दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू द पार्लियामेंट्री वोट, एंड रीअपॉइंटमेंट आप नहीं कर सकते। इसलिए ये इनकी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करके रखता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको याद रखनी है। लाइक आफ्टर द रिटायरमेंट members are not eligible for the reappointment in the यूपीएससी, एंड सर्विस ऑफ कंडीशंस जो हैं ये भी है, दे कैन नॉट बी चेंज टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट। लाइक आप अपॉइंटमेंट के बाद उनकी कंडीशंस को चेंज नहीं कर सकते, ऑल्दो आप पहले कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के पहले, आफ्टर द अपॉइंटमेंट आप इसकी कंडीशंस चेंज नहीं कर सकते, ताकि उसकी इंडिपेंडेंस को मेंटेन किया जा सके। ठीक है। नाउ नाउ विल मूव टू दी article number 320, which talks about the functions of the UPSC. So basically it conducts the exams, जैसे कि हम सभी जानते हैं, for the recruitment of all India services, IAS, IPS, IFS, that is the forest service, and the central other central group A, group B services. एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी करता है थ्रू इंटरव्यूज टेस्ट सर्टेन पोस्ट के लिए, एंड प्रमोशन ट्रांसफर्स के लिए एडवाइस करता है, द प्रमोशन ट्रांसफर टू द डीओपीटी एक्सेट्रा ना। डिसिप्लिनरी मैटर्स में भी ये एडवाइस करता है फॉर द सिविल सर्विस सिविल सर्वेंट्स। एंड जैसे कि कल कल को आप जब सेलेक्ट होकर जाएंगे तो वहां पे आपकी डिसिप्लिनरी मैटर से रिलेटेड एडवाइजरी ये दे सकता है ऑन द केसेस ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, है ना। तो ये याद रखना है। नाउ फ्रेमिंग ऑफ द रिक्रूटमेंट रूल्स की अगर बात करें तो ये विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्टर्स ये फॉर्मुलेट करता है, रिक्रूटमेंट रूल्स को फॉर्मुलेट करता है, पॉलिसीज को, है ना। नाउ इट इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी हमको याद रखना है, ऑन द मैटर ऑफ ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द सिविल सर्विसेज एंड अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशंस एंड द डिसिप्लिनरी एक्शंस व्हिच आई हैव ऑलरेडी टॉक टू यू जस्ट नाउ। ठीक है। नाउ एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो ये सबमिट करता है अपना एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको फिर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में लेट डाउन करते हैं, which basically contains the details of the recruitment, examinations and the performance. एंड इसकी कुछ लिमिटेशन ऑफ कोर्स, सब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। सो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें अगर प्लस में हैं तो देयर इज अ लिमिटेशंस आल्सो, लाइक यूपीएससी इज नॉट कंसल्टेड इन द फॉलोइंग मैटर्स। और वो कौन कौन से मैटर्स हैं, लाइक लोअर लेवल पोस्ट में फॉर एग्जांपल ग्रुप सी डी के लिए कोई आप कंसल्ट नहीं कर सकते, temporary appointments is less than 1 years के लिए, and the position in the public sector undertaking like PSU, judiciary and the armed forces which have their own recruitment bodies like SSB होती है, तो वहां पे करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन उनके लिए तो सेपरेट बॉडीज हैं वहां पे। नाउ नेक्स्ट आता है इसी से जुड़ा हुआ, जैसे कि यूनियन में यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इन द सेम काइंड द स्टेट में जो मिली हुई है दैट इज द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज एसपीएससी। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सेम। आर्टिकल नंबर 315 क्लॉज 1 कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है टू स्टेट टू फॉर्मुलेट द पब्लिक सर्विस कमीशन टू रिक्रूट देयर सिविल सर्वेंट्स। फॉर एग्जांपल यूपीपीसीएस है, बीपीएससी है, एमपीपीसीएस है, तमिलनाडु पीसीएस है। सो इस तरीके के हर स्टेट में बॉडीज बनी हुई हैं टू रिक्रूट देयर ओन सिविल सर्वेंट्स ना। इनका फंक्शन की बात करें तो आर्टिकल नंबर 320 में ही मेंशन है, लाइक दे कंडक्ट द एग्जाम्स फॉर द अपॉइंटमेंट टू द स्टेट सर्विसेज, advices to the state government on the method of the recruitment, promotions, transfers, disciplinary matters। जो चीजें यूनियन में यूपीएससी करता है सेम चीज इज डन बाय द एसपीएससी, दैट इज द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन द स्टेट लेवल। ठीक है। अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो अपॉइंटमेंट्स ऑफ द मेंबर्स इज डन बाय द गवर्नर अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द एसपीएससी,
at least the members who are going to appointed as a member of the SPSC, they have to experience of the 10 plus years in the government services. And tenure की बात करें again, so 6 years and until the age of 62. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में कितना था? 65 and 6 years. यहाँ पे कितना है? 6 years and the 62 years, whichever is earlier, पर their conditions, वहाँ पे आपका tenure वहाँ पे कंप्लीट होगा. ना रिमूवल की बात करें तो रिमूवल ये याद रखना, पॉइंट कौन करेगा इसको? गवर्नर, लेकिन रिमूवल होगा ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट द गवर्नर, ये याद रखना. Is removal process of SPSC is also done by the president and not the governor, although the governor appoints the chairman, the member of the SPSC. Now, after referring the matter to the Supreme Court, like just UPSC, कि same procedure होगा, and procedure follow कौन करेगा? President करेगा, not the governor. ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गवर्नर नहीं करेगा, गवर्नर सिर्फ अपॉइंट करता है, लेकिन रिमूवल प्रोसेस इट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ओनली आफ्टर द मैटर इज रेफर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट, आफ्टर द इंक्वायरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जस्ट लाइक यूपीएससी. ठीक है. नाउ इंडिपेंडेंस की बात करें तो ऑफ कोर्स कंडीशन द सर्विसेज आर प्रोटेक्टेड, लाइक आप अपॉइंटमेंट के बाद आप इसको डिक्रीज नहीं कर सकते. सेम चीज, expenses are charged on the consolidated fund of state, not the consolidated fund of India, but of course state का है तो state के consolidated fund पे वो expense charged होगा. लेकिन ये याद रखना है कि state legislative assembly इसके लिए vote नहीं कर सकती, because ये charged upon है consolidated fund of state में, ये याद रखना है. Now members की बात करें तो members are again not eligible for the reappointment इन द सेम एसपीएससी. लाइक आप अगर एमपीपीसीएस के सदस्य रहे हैं तो आप एमपीपीसीएस में आप रीअपॉइंट नहीं हो सकते. ठीक है. नाउ ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी एक कंसेप्ट है जिसे आपको जानना होगा. लाइक कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 315 क्लॉज 2 में ही कहा गया है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो अपने लॉ से प्रोवाइड कर सकती है एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज द जेएसपीएससी, और बेसिकली जेपीएससी कहते हैं जिसको, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि 2 और 2 से अधिक राज्यों के लिए भी मिलाकर बनाया जा सकता है. इसका पर्पस ये होगा कि आप 2 और 2 से अधिक राज्यों में स्पेसिफिकली जो छोटे राज्य हैं या फिर यूटी हैं, वहाँ के लिए जो एक तरीके से वहाँ के लिए आप स्पेशल एक पीएससी का निर्माण करें, जहाँ पे आप उनके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस और जो सेम चीज़ें यूपीएससी और एसपीएससी करती है, सेम चीज़ें आप उन स्टेट्स के लिए करें. बट ये याद रखना कि पार्लियामेंट के पास ही ये पावर है टू सेट अप दी जेपीएससी, लेकिन कब? ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ दोज 2 स्टेट्स और मोर स्टेट जो चाहते हैं कि हमारे लिए जेपीएससी का निर्माण किया जाए. ठीक है. अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर की बात करें सो अगेन द सेम चीज, दैट इज द अपॉइंटमेंट इज डन बाय जेपीएससी के लिए जस्ट लाइक यूपीएससी है कि प्रेसिडेंट ही करेंगे, ना कि गवर्नर, बिकॉज वहां पे मोर देन 2 स्टेट्स का मामला इंक्लूडेड है. वेयर एज द एसपीएससी के लिए गवर्नर करेंगे, लेकिन रिमूवल प्रोसेस कौन करेगा? प्रेसिडेंट. नाउ टेन्योर की बाट करें तो 6 years and 62. अगेन जेपीएससी के लिए वो वाला फॉर्मूला अपनाया जाएगा जो कि स्टेट पीसीएस के लिए अपनाया जाता है फॉर द मैटर ऑफ द रिमूवल और द टेन्योर की प्रोसेस पे, लाइक 6 years and 62. whereas द यूपीएससी के लिए 6 years and 65 एज था, एसपीएससी और जेपीएससी के लिए 6 years and 62 एज है. ठीक है. तो ये याद रखना है, हमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं है, बस बस हमको थोड़ा सा याद रखना है कि कौन सा किसमें दिया हुआ है. ठीक है. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट थिंग दैट जो जेपीएससी की रिपोर्ट्स होती है उसमें क्या किया जाता है. तो जेपीएससी की रिपोर्ट में अगर मैं बात करूं तो ये अपनी रिपोर्ट गवर्नर को प्रोवाइड करता है, जो भी उसमें वहां पे इंक्लूडेड होते हैं. ठीक है. तो जितने भी स्टेट्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं उनको वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है और फिर वो अपने अपने स्टेट्स में उसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो ये तो हो गया अभी तक का जो मैंने बताया जेपीएससी के बारे में. नाउ आज की डेट में अगर बात करें कि कोई जेपीएससी है तो नहीं, करेंटली देयर इज नो एक्टिव जेपीएससी एग्जिस्ट इन द इंडिया. ठीक है ना, इन इंडिया, ये याद रखना. नाउ जेपीएससी और एसपीएससी में कुछ अंतर देख लेते हैं इन शॉर्ट, अगर टेबल फॉर्म में तो वो ज्यादा अच्छा होगा हमें समझने के लिए. लाइक आर्टिकल 315 क्लॉज 1 में एसपीएससी के बारे में बात की गई है, स्टेट पीसीएस के बारे में, और ज्वाइंट पीसीएस के बारे में बात किया गया है 315 क्लॉज 2 में. ये सिंगल स्टेट में सर्व करता है, ये 2 और 2 से ज्यादा मोर स्टेट्स में ये सर्व करता है. इसको स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करती है और इसको पार्लियामेंट फॉर्म करती है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट. ठीक है ना, जो कि इसमें इन्वॉल्व हुई. इसमें एक गवर्नर इसको अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, इसमें प्रेसिडेंट होते हैं. इसमें 6 years और 62 एज होती है, और इसमें भी सेम होता है. ठीक है ना. नाउ रिपोर्ट सबमिट की जाती है गवर्नर ऑफ द स्टेट को. इसमें गवर्नर ऑफ द ऑल द कंसर्न स्टेट, जितने भी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व है, जितने भी स्टेट्स उसमें इन्वॉल्व है, यूटी और
स्टेट्स जो स्मॉलर स्टेट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल द बिहार पीएससी एंड द एमपी पीएससी और यूपी पीएससी इस तरीके से है। और इसमें रेयर ही देखना, लाइक अभी तो कोई भी ऐसे जीपीएससी के रूप में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अभी मैंने बताया। तो ये अभी हमने देखा कि जेपीएससी, एसपीएससी, यूपीएससी के बारे में, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड्स टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड वी हैव टू रिमेंबर ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड पॉइंट्स विच आई हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर एग्जाम, बिकॉज अभी आपको पता होगा कि 16th फाइनेंस कमीशन का गठन कर दिया गया है रिसेंटली, एंड उसके चेयरमैन बनाए गए हैं हमारे डॉक्टर अरविंद पनगरिया साहब। ठीक है। अब फाइनेंस कमीशन होता क्या है? आर्टिकल नंबर 280 में इसके बारे में डिटेल में बात की गई है। लाइक फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अगेन इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में इसको बनाया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसका काम होगा टू डिफाइन द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। बेसिकली ये क्या करेगा कि जो भी फाइनेंसेस होंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे, उसको सेंटर से स्टेट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसका जो फॉर्मूला है उसको कैसे किया जाएगा, वो सारी चीजें वो स्टडी करके, वो सारी चीजें देख करके, और ये रिपोर्ट सबमिट करती है फाइनेंस कमीशन। और उसके बेस में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट सेंटर जो होता है वो स्टेट को अपनी फाइनेंसेस से डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। आपको मुझे ये बताना है कि 14th और 15th फाइनेंस कमीशन, 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन के कौन चेयरमैन थे, और कितने परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन को 14th और 15th फाइनेंस कमीशन ने अलाउ किया था, वो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ठीक है। नाउ प्रेसिडेंट सेल, इसके बारे में मैं डिटेल में बताता हूँ, आपको समझना होगा। लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेल हैव टू विद इन द 2 years ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब ये स्टार्ट हुआ था तब उसके बाद से बात करी गई है। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वो मैं बता रहा हूँ। एवरी 5 years अर्लियर, 5 साल या 5 साल से पहले भी आपको कॉन्स्टिट्यूट करना होगा अंडर आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। एंड द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया सेल कंसिस्ट ऑफ द चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स, यानी कि 4 अदर मेंबर्स के साथ चेयरमैन आप इसमें यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। और ये रिकमेंडेशन किसके ऊपर करेंगे वो हमको समझना होगा। The distribution of the net proceeds of the taxes between the center and the state, principal governing grants in aid to the state, and the measure to the augment of the resources of the Panchayati Raj institution and the municipalities, which is added in the 73rd and the 74th Constitutional Amendment of 1992। ठीक है। और ये याद रखना एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, जो कि एनी अदर मैटर विच इज रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी मान लो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कोई और मैटर याद आए, उन्होंने बोला कि इसके बारे में भी आपको बताना है कि इसमें कैसे किया जा सकता है। सो एनी अदर मैटर रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और बेसिकली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वहां पे आप उसको फाइनेंस कमीशन का ये काम हो जाता है कि वो उसके बारे में भी रिपोर्ट सबमिट करेंगे अपनी रिपोर्ट में। ठीक है। नाउ फंक्शंस की बात करें, ऑफ कोर्स टैक्स डेवोल्यूशंस, जो कि मैंने अभी बताया कि रिकमेंड द शेयरिंग फॉर द सेंटर टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी 41% जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एज पर द 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग। अब ग्रांट इन एड की बात करें तो इट आल्सो सजेस्ट द प्रिंसिपल फॉर गिविंग द ग्रांट इन एड, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देती है टू द स्टेट्स ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए। वो कितने परसेंट कैसे करना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, दीज आर द डिसाइडेड बाय द फाइनेंस कमीशन, एंड एज पर द फाइनेंस कमीशन the central government distribute the grant in aid also. Now लोकल बॉडी फंडिंग के लिए ऑफ कोर्स ये भी एक बताती है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के लिए पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज रिकमेंड करता है कि ऑगमेंट करेगा कैसे किया जाएगा। अदर फंक्शंस एडवाइजर्स ऑन एनी अदर मैटर व्हिच इज रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट, जस्ट आई हैव सेड यू, फॉर एग्जांपल डिजास्टर रिलीफ फंडिंग एंड द जीएसटी कंपनसेशन फंड इज सजेस्टेड, है ना। नाउ कंपोजिशन की बात करें तो 4 मेंबर्स आर द मेंबर्स ऑफ दिस फुल फाइनेंस कमीशन, एंड द वन चेयरमैन इज as heading the finance commission. For example, this time the 60th finance commission is headed by the Dr. Arvind Pangaria. So you have to remember the chairman at least, who is presiding, who is leading the that finance commission of that particular year. Now judge of the high court, like जो भी chairman होगा expert in public affairs होगा। For example जो अभी हैं इस समय आपको पता होगा, ये अरविंद पनगरिया नीति आयोग में रह चुके हैं। नीति आयोग के कौन थे आपको ये बताना है मुझे। ये नीति आयोग में बहुत इंपॉर्टेंट पद पर रह चुके हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये किस पद पर नीति आयोग में रहे हैं। ठीक है। नाउ बात करते हैं कि जज ऑफ द हाई कोर्ट होने चाहिए, मेंबर्स हो सकते हैं लाइक एक्सपर्ट इन फाइनेंस,
अकाउंटेंसी ऑफ कोर्स जब आप ये सब जानोगे तभी तो आप उसके बारे में आप बता सकोगे अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन लाइक किसी को भी तो नहीं बना सकते है ना उनके पास नॉलेज होनी चाहिए गवर्नमेंट फाइनेंस की एडमिनिस्ट्रेशन की द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इटसेल्फ सो होल्ड एन ऑफिस फॉर द स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन जो लिखा होगा वो इटसेल्फ सो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पे अभी हमने समझा the composition of the Finance Commission. Now, next important constitutional office is the National Commission for the Scheduled Caste, which we have to remember. Now, like it is also a constitutional body under Article 338. In the night, what happened earlier, we have to look first. Like in the 1978, the multi-member commission was constitution for the SC and ST, and in the 1990, after 65th Constitutional Amendment Act was passed and upgraded to the Commission under the Article 338 like इसको constitutional status दिया गया और 2003 में 89th Constitutional Amendment Act से इसको bifurcate करके NC-SC अलग बना दिया गया और NC-ST अलग बना दिया गया which is constituted in the 2004 basically ठीक है अब हमें ये समझना है कि जो नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से ये करता क्या है दे हैव टू basically investigate and monitor to all the matters which is relating to the safeguard of the provided to the scheduled caste and scheduled tribes particularly उनके बारे में स्पेसिफिक कंप्लेंट्स लेना पार्टिसिपेट करना प्लानिंग प्रोसेसेस में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सारी चीजों में इसकी रिकमेंडेशंस ली जाती हैं although recommendations are not binding on the government वे फिर भी तो बनाया गया है to safeguards the interest of the scheduled caste and the scheduled tribes ये याद रखना ठीक है now what are the functions of course मैंने अभी शॉर्ट में बताया उसको डिटेल में समझते हैं like they have to monitoring they have monitoring and investigations of all the issues which is concerning about the safeguards of the SCs SC और STs again यहाँ पे ST की भी बात करेंगी करी जाएगी now inquiring the into the complaints like inquiry भी कर सकते हैं like safeguards to provide the safeguards to the scheduled caste and it is also taking a part in the advising the central and the state governments with respect to the planning and the socio-economic development of the scheduled caste. Now, it basically the National Commission for the Scheduled Caste regular reporting करता है to the president of the country और recommend करता है steps to take for the emancipation or the empowering the socio-economic development and the welfare activities for the scheduled caste or in the case of the scheduled tribes the ST के लिए ठीक है ना now till 2018 the commission was also required to discharge the similar power functions with regard to the other backward classes है ना लेकिन यहाँ पे इनको 102nd constitutional amendment act से इनको remove कर दिया गया है ठीक है ना it was relieved from the responsibility of this Anglo-Indian community ठीक है now द NC-ST इज सेम अगेन जो SC के लिए आप कर रहे हो वही ST के लिए भी अप्लाई होगा सेम चीजेस लाइक स्ट्रक्चर इसमें यही है कि चेयरपर्सन होंगे जो कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के होंगे वाइस चेयरमैन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक के होते हैं और 3 मेंबर्स कमेटी लाइक सेक्रेटरी रैंक के होता है उनको बनाया जाता है अपॉइंटेड किए जाते हैं ऑफकोर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एंड एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ सेल बी अपॉइंटेड बाय अमंगेस्ट वुमेन ठीक है टेनवर की बात करें तो टर्म ऑफ ऑफिस फॉर ऑल द 3 इयर्स 3 साल की होती है एंड द मेंबर कैन बी रीअपॉइंट ये याद रखना यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट हो सकता है फॉर अ मैक्सिमम ऑफ द 2 इयर्स ठीक है सो दीज आर द बेसिकली few most important constitutional bodies which I have not discussed earlier now today in this video we have talked